All right. I hope you can view myself and just sharing my screen as well. So first of all, thanks so much everyone for joining the call. And this would be an interactive session. So let's not wait. If you have any question, just interrupt me or message me, and we'll take it there. And we'll progress. And it could be like interactive session so that we can get most of its benefit, right? All right. So let me share my screen first. Okay, so let's little bit brief about the Gen AI and how it has come. I will not take more than 2 minutes because it was covered in previous session. So if you anybody wants more details, you can join the previous session. Recordings are there in YouTube channel as well. So this is AI, and AI is a broader term. It is mostly the intelligence we are trying to develop into the systems, computer system, basically, mostly we can say, and that is called AI. AI is a bigger umbrella. Within that, machine learning, deep learning, and Gen AIs are there. Whatever is happening is part of Gen AI. Like due to Gen AI introduction and Gen AI research, it is now the LLM models have been devised and has come into the picture, and then Gen AI has changed the this landscape of natural language processing. When we say large language model, it has all the data available openly in that is something which is technique these days. So how to get the knowledge out of it, how to get the knowledge, how to get the information out of it is the thing which is now more in demand. So that is called prompt engineering. So prompt engineering के through हम लोग जो भी हमें पूछना है इससे we can ask the LLM models with the user prompts. So prompt engineering is very important. Everybody should learn prompt engineering. The word engineering is for a reason, and when you go through the courses and all, you will come to know. So it is not like engineering है तो सबको बहुत ज़्यादा deep में जाना वैसे जरूरत नहीं है, पर जैसे कंप्यूटर ऑपरेट करना सबको आना ही चाहिए था, वैसे prompt engineering is a technique which everybody has to learn. आज नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा. ठीक है, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट अडॉप्टिंग इट, स्टार्ट लर्निंग इट, एंड देन प्रोग्रेस विथ इट. सो एआई कहीं जाने वाला नहीं है, प्रोग्रेस ही करेगा. अभी एआई है, फिर एजीआई आएगा, फिर कुछ और आएगा. तो द इंटेलिजेंस पार्ट ऑफ द एआई वुड कीप इंक्रीजिंग कमिंग डेज, वी विल सी. एंड दिस ईयर इट वुड change many sectors, I would say, and drastically. Okay, so just wait and watch. I think many things have already started, and few more are in in pipeline. All right, so ठीक है. अभी एक I think my screen is visible now. So this meeting is recorded, and this session is a disclaimer. With the disclaimer, I would like to start. I am not a lawyer, and this is just for education and procedural guidelines. Okay, so use with your own mentor or legal advisor, whatever you want to use. But this is good for education and your information purpose. सो व्हेन वी से आरटीआई, आज का एजेंडा आरटीआई के ऊपर है. तो आरटीआई जो भी हम बोलते हैं, तो दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन. दैट इज योर राइट. यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन विद द डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. वैसे आप जाओगे तो मना कर दिया जाएगा, बट if you go with the right approach, right drafting, the chance of getting rejected your ITI application is very less. And I think Hindi is okay for everyone, right? Or I should I continue with uh, Hindi and English, like English types, because I'm not sure. Everyone understand Hindi, right? Yes, Divakar. ठीक है ओके. चलेगा. चलेगा. ओके ठीक है कोमल. ओके, we'll keep like English kind. Okay.
And anything is like you are not able to understand anything in between ना, just to stop me there and we'll discuss it. तो आरटीआई का ये एक प्रोसेस फ्लो है जो जनरली कहता है कि 30 दिन के अंदर हमको रिप्लाई मिलना चाहिए। अगर रिप्लाई नहीं मिलता है और तो आप उसको फर्स्ट अपील में जा सकते हो, ठीक है? फर्स्ट अपील का प्रोसेस है। अगर तो जैसे आप आरटीआई रिक्वेस्ट डालते हो 3 ऑप्शन होते हैं, या तो वो रिप्लाई फ़ेज़ में जाएगा या फिर वो ट्रांसफ़र होगा किसी और डिपार्टमेंट में या फिर वो नो रिप्लाई में जाएगा, तो वहाँ से अभी आपको रिप्लाई आएगा। तो इन एनी केस अगर आप आरटीआई लगाते हो, तो यू विल डेफिनिटली गेट सम रिप्लाई। सो दैट्स द थिंग। तो अगर रिजेक्ट भी होगा तो यू विल गेट अ रिप्लाई, यू विल हैव अ चांस टू अपील अगेन। तो रिजेक्शन जो होता है वो उसके बहुत सारे रीज़न रहते हैं। वी विल डिस्कस अभी आगे डिस्कस करेंगे क्यों रिजेक्ट होते हैं और कैसे हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं कि वो रिजेक्शन के चांस कम हो जाएँ। और ये उसके डे एंड टाइमलाइन्स हैं और आरटीआई के एक अलग कोर्ट होता है जिसमें कि ये सारा मैटर डिस्कस होता है। अगर आपको फर्स्ट अपील में भी सैटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन गो टू कोर्ट, आरटीआई कोर्ट, एंड देयर यू कैन हैव द डिस्कशन फर्दर। एंड दिस इज़ द आरटीआई साइट, ऑनलाइन साइट है ये। अगर आप इसमें जाते हो तो यू हैव द ऑप्शन टू ड्राफ्ट द आरटीआई, क्रिएट अ आरटीआई रिक्वेस्ट, ओके। सो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सबमिट लॉगिन करके देन यू कैन क्रिएट एन आरटीआई। लेट मी शेयर बिकॉज़ आई एम नॉट ड्राफ्टिंग एनी आरटीआई। I have downloaded an file which says how to make the form, how to enter an आरटीआई ऑनलाइन। तो ये पोर्टल में जाके आप ऑनलाइन आरटीआई ईमेल आईडी दे सकते हो, मोबाइल नंबर दे सकते हो, एंड देन इट विल प्रोसेस वुड स्टार्ट, ओके। सो ये आरटीआई ये डॉक्यूमेंट आरटीआई साइट पे मिल जाएगा आपको। अगर आप देखोगे तो यू कैन डाउनलोड दिस फाइल, ठीक है ना? तो यहाँ पे जाके देन यू से सबमिट फॉर सबमिटिंग आरटीआई एप्लीकेशन, ओके, सबमिट रिक्वेस्ट। सबमिट रिक्वेस्ट पे आप जाओगे यहाँ पे, देन यू कैन से आई हैव रेड द, देन सबमिट, एंड देन ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये सब देके आगे बढ़ सकते हो। कितने लोगों को ये ऑलरेडी पता था कि ये ऑनलाइन पोर्टल से हम लोग आरटीआई लगा सकते हैं? अब ये ओटीपी आएगा। ठीक है, उसके बाद ये आता है, यहाँ पे आपको है ना मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट है, वो आपको एप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप गलत भी सेलेक्ट करते हो तो जनरली वो ट्रांसफ़र हो जाता है, पर उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अननेसेसरी। तो जैसे आप पावर डिपार्टमेंट से कोई जानकारी चाहते हो, रेलवे से चाहते हो कि नई ट्रेन्स कब स्टार्ट होगी या कहाँ-कहाँ जाएगी, जो भी है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आप ले सकते हो इन्फॉर्मेशन। सो ये सारे डिपार्टमेंट्स है बेसिकली, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? देन यू हैव टू सेलेक्ट द पब्लिक अथॉरिटी। सपोज़ हम ऑल मिनिस्टर्स करते हैं तो इसके अंदर भी सब कैटेगरीज़ जो भी होगी अगर तो आएगी यहाँ पे। ऑलराइट, देन ईमेल आईडी वही आप सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करके देन यू कैन गो अहेड एंड सबमिट इट। सो यहाँ पे आप आरटीआई का एप्लीकेशन लिख सकते हो, प्लस आप फाइल भी अपडेट करके इसमें अटैच कर सकते हो। व्हेन यू से सबमिट देयर विल बी अ वर्क फ्लो, वो आपको ये इस तरह से आएगा। पेमेंट का ऑप्शन आएगा बेसिकली, तो वहाँ पे आप ₹10 का एक आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यू कैन डू इट विथ यूपीआई एज़ वेल, एंड देन वन्स यूपीआई पेमेंट इज़ डन you can get your RTI filed actually. Once RTI is filed, you will get a number, and just keep that number with you so that next time when you come to view the status now, you can go to RTI, see RTI status करके एक ऑप्शन रहता है। यहाँ पे जाके you can search and see the where is your RTI is proceeding and how it is right now looking up। तो यहाँ पे व्यू स्टेटस में जब आप जाओगे तो जो नंबर आपको मिला होगा वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे ऐड करोगे तो ये देन यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ योर आरटीआई, राइट? नो नीड टू लॉग इन एक्चुअली, जस्ट इफ यू सी द नंबर ईमेल आईडी और ये, तो यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा कि आपका आरटीआई अभी वेयर इट इज देयर, एंड इफ इट हैज बीन ट्रांसफर्ड वेयर इट इज, एंड in between if you got any RTI reply that would come to your email ID.
Okay. All right. Any questions so far? Okay. So I think we are going good. Yes. So which you can use in the code, because RTI documents are valid proof. Because if you get something from sources which are not a valid source, you can use that source. So if RTI is a valid source, you can use that for your purpose of evidences. All right. What RTIs can expose: employment, salary, HRA, PF, सरकारी accommodation, rental claims, 493 proceedings, procedures, labs, NGO coordination, shelter home records, travel records, DIR रिपोर्ट, अगर DB केस की बात करें तो DIR रिपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क इनटू RTA कि हाउ इट हैज बीन proceed and what information, who visited your places and who ever done, protection officer whatever information he gathered, whatever details he has done. You can also raise RTA to the school where if you know the wife is working, or the girl who is claiming false fake cases and she is claiming that she is not working. You can take that information from, if you know that organization where she is working, you can also use that place to get the information from there. Okay. And then we have, actually you don't know how it is going, where it is going, there are no timelines, and it also works some cases. I would not say it is completely no, but it depends upon how you want. But if you are doing online, generally it is very prompt, and because it is digital record, you can easily catch, and you can easily track it. Okay. नाउ कम्स टू एआई. तो एआई कहाँ हेल्प करता है आरटीआई में, आरटीआई ड्राफ्टिंग में, और हाउ वी कैन यूज एआई. सो दैट पार्ट वी विल कवर नाउ. ओके. ऑलराइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द with these prompts. Actually convert allegation into RTI question. तो अगर अगर आपको ये कुछ देखना है कि आपके आरटीआई कहाँ-कहाँ लगा सकते हो बेस्ड ऑन योर आरटीआई, बेस्ड ऑन योर एलिगेशंस, तो आप ये एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हो. एक्ट एज़ एन आरटीआई ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट फॉर मैट्रिमोनियल केस डिफेंस इन इंडिया. कन्वर्ट द फॉलोइंग एलिगेशन इंटो न्यूट्रल लीगल वैलिड आरटीआई क्वेश्चन. अवॉइड एक्यूजेशन एंड ओपिनियंस, आस्क ओनली एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड. एंड यहाँ पे आप है ना इसके साथ में अटैचमेंट कर सकते हो अपना जो भी एलिगेशंस आपको लग रहे हैं कि झूठे हैं, जो कि एप्लीकेशंस में या कंप्लेन लेटर में आए हैं, वो एलिगेशंस आप एक टेक्स्ट फाइल में या फिर मार्कडाउन फाइल में, अगर नहीं होता है तो पीडीएफ आल्सो यू कैन अपलोड, बट बेटर लाइक इट इज बेटर टू यूज markdown file or text file to get better result. And if you have very big file, then you can chunk the file, or you can make a summary of the file of the allegation, like we have already seen in the previous sessions कि हम लोग कैसे summary बना सकते हैं एक बड़े फाइल का. तो summary allegation का आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये जो है ये बहुत वेग सा प्रॉम्प्ट है, बहुत वीक प्रॉम्प्ट है आई वुड से. ठीक है. अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास एक टूल है, बहुत अच्छा टूल है, वहाँ पे हम मैजिक प्रॉम्प्ट क्रिएटर टूल. ठीक है. वहाँ पे हम अगर कोई भी वेग प्रॉम्प्ट भी डालते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स लेट्स सी दिस टूल हाउ इट वर्क्स. तो यहाँ पे जैसे आप इसको स्टार्ट करते हो, इसका नाम है मैजिक प्रॉम्प्ट आर्किटेक्ट. ओके. तो ये आप शुरू करते हो सपोज़. यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है. अदरवाइज़ आल्सो यू कैन जस्ट स्टार्ट टाइपिंग हियर. क्रिएट अ मैजिक प्रॉम्प्ट फॉर द टास्क. टर्न द वेग आइडिया इंटो अ डिटेल्ड मैजिक प्रॉम्प्ट. आई वांट अ हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट फॉर द सेम एंड सेम सो एंड सो. ओके. सो डिज़ाइन अ मैजिक प्रॉम्प्ट फॉर अ कंप्लीट कॉम्प्लेक्स टास्क. तो सपोज़ मैं ये बोलता हूँ डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स टास्क, तो ये आपसे पूछेगा कि कौन से टास्क के लिए आपको मैजिक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है. तो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट से कि मुझे ये वाला काम के लिए मैजिक प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है.
Any questions so far? Anybody is not understanding or what is magic prompt or what is prompt or what is Gen AI? Anything you can ask. तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हो, लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हो, देन इफ यू से गो, इट विल जस्ट क्रिएट अ मैजिक प्रॉम्प्ट फॉर यू। ओके। तो अभी हम लोग मैजिक प्रॉम्प्ट मतलब जो थिंकिंग पार्ट है वो भी हम लोग एआई से करवा रहे हैं। डूअर पार्ट इज इट इज डूइंग एनीवे, बट वी आर यूजिंग हियर द थिंकिंग पार्ट एज वेल। थिंकर हैट आल्सो इज ऑन फॉर द एआई आल्सो ओनली। So we are trying to get more information, more detailed information from this tool itself, right? So this magic prompt tool is very, very good. I would share this document complete after the course, and you can download it as well. Okay. So the link, if you want magic prompt का मैं आपको भेज देता हूँ. That is, these are all free tools, no charges and all. So just use it wisely. So you can use this magic prompt creator and that get the task done for in any of the specific areas. Actually you just need to prompt and say this कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, then it will do the task for you. So this role task instruction पूरा डिटेल में आ गया, डेटा क्या क्या आप अपलोड करोगे वो आ गया, एंड देन चेकलिस्ट आ गया। तो ये 2 लाइन का जो आपका डेटा था उससे ये बहुत बहुत डिटेल प्रॉम्प्ट क्रिएट कर देगा। और ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी पेस्ट करके आप कोई भी एआई मॉडल में अगर डालते हो, सपोज मैं बोलता हूँ लेजिट मेंटोर को ही बोलता हूँ सपोज कि जस्ट डू अ गुड ड्राफ्टिंग फॉर मी, एंड आई पेस्ट दिस मैजिक प्रॉम्प्ट हियर। ये मैजिक प्रॉम्प्ट हटा सकते हैं हम लोग, इसकी जरूरत नहीं है। एक्ट एज अ सीनियर आरटीआई ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट विद डीप एक्सपीरियंस इन सो टास्क दिस इन दिस टास्क। तो ये टास्क के लिए आपको पूरा वो करके दे देगा। अभी मैंने इसमें एलिगेशंस वगैरह का लिस्ट नहीं डाला है, अदरवाइज इट वुड वेरी वेरी प्रिसाइजली इट वुड टेल कि कौन से डिपार्टमेंट में आप कर सकते हो। अगर आप इसको बोलोगे कि स्कूल के लिए बनाओ तो ये स्कूल के लिए आपको आइडिया दे देगा। ठीक है ना? और इस तरह की सारी चीजें। अब ये पूछेगा हिंदी में करना है, इंग्लिश में, सपोज आई से इंग्लिश हिंदी ओनली, तो इट वुड ड्राफ्ट इन हिंदी। सी। तो देखो ये हो गया, इसके बाद ये पूछ रहा है कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये जैसे 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 आप बोलोगे, अगर आपको एफआईआर में लिखो है तो आपको एफआईआर की कॉपी इसमें डालना पड़ेगा, डीवी एक्ट है तो डीवी की कॉपी कंप्लेन की डालनी पड़ेगी। तो ये सब अब जैसे आप इसको ऐड करोगे ना तो इसको इट विल गिव यू आरटीआई अकॉर्डिंग टू दैट। तो इस तरह से आप इसे चैट करते रहोगे तो ये आपको प्रिसाइजली ये अभी जैसे पूछ रहा है कि अभी, क्योंकि इसको अभी आरोपों का हमने वो नहीं दिया, डिटेल नहीं दिया, तो इट इज गेटिंग कंफ्यूज। तो जब आप कॉपी इसमें अटैच करोगे ना तो इट विल गिव यू वेरी गुड ड्राफ्टिंग। लेट मी जस्ट अटैच सम सैंपल डेटा। चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी सर, बोलिए। आई थिंक आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, हाँ जी। तो एक परप्लेक्सिटी भी आता है, आपको हाँ पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो मैंने चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी दोनों को अपनी डीवी की पिटीशन दी, स्कैन हम्म करके अपलोड करी। हम्म तो जो एक्यूरेसी थी डॉक्यूमेंट को रीड करके रिप्लाई करने की, वो परप्लेक्सिटी की बेटर थी। उसका रीजन ये है कि परप्लेक्सिटी के पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, राइट? हम्म, और वो उसमें से एनालाइज करता है कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल और वो उसको पिक करके उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। तो एज कंपेयर टू चैट जीपीटी मुझे इन टास्क के लिए हम्म, परप्लेक्सिटी बेटर लगा। ये बस मैं बिल्कुल बिल्कुल बाकी लोगों के लिए भी जानकारी के लिए बताना चाह रहा था। और दूसरी चीज, अगर किसी के पास एयरटेल का फोन नंबर है तो एयरटेल के थ्रू परप्लेक्सिटी का प्रीमियम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सबको फ्री। तो बिल्कुल वो भी सब लोग अवेल कर सकते हैं एयरटेल बिल्कुल, थैंक्स बहुत ऐप से। बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी। ये लास्ट मीटिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी, और परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा है रिसर्च के लिए। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं। जेमिनी में आप ट्राई कर सकते हो, क्लाउड में ट्राई कर सकते हो। क्लाउड इज़ ऑल्सो वेरी गुड टूल। सो वो सारी लिस्ट अपनी शेयर
हाँ सर जी, तो एयरटेल नंबर से कैसे सब्सक्रिप्शन इसका ले बेटर पाएंगे ऑल जो दिस आप थिंग्स बता रहे हो 1 ईयर तो का? परप्लेक्सिटी इज वेरी गुड फॉर एक्चुअली परप्लेक्सिटी अगर बेटर आपके इसलिए पास क्योंकि एयरटेल जो ऑलरेडी भी है हाँ, जो भी आपने मॉडल्स बताए वो सारे परप्लेक्सिटी में एक साथ ही है, और वो परप्लेक्सिटी अपने आप को एनालाइज करता है कि मेरे लिए जेमिनाई ठीक रहेगा, क्लॉड ठीक रहेगा, चैट जीपीटी ठीक रहेगा इस चीज के लिए, और फिर वो पिक कर लेता है अपने आप, रादर देन हम जगह जगह जाके चीजें ट्राई करें, हमें वो सब कुछ वहीं मिल जाता है। और एक सर पूछ रहे हैं कि वो कैसे अवेल कर सकते हैं, तो एयरटेल थैंक्स ऐप है, वहाँ पे आप अपने फोन नंबर से लॉग इन कीजिए और बेनिफिट्स में क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ दिखेगी परप्लेक्सिटी की मेंबरशिप आपकी आई होगी, उसको आप रिडीम पे क्लिक करोगे तो फिर वो साइन अप वगैरह करके आपकी ईमेल से हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी हम कोई यूज़ करें तो हमको सारे मॉडल्स यूज़ करके देखने चाहिए। जो भी मॉडल बेस्ट रिज़ल्ट दे रहा है, वी शुड गो विद दैट। तो वी कैन यूज़ परप्लेक्सिटी फॉर द सेम प्रॉम्प्ट वी कैन ये जो प्रॉम्प्ट अभी हमने बनाया ये परप्लेक्सिटी में भी यूज़ करो आप और इसमें चैट जीपीटी में, लेजिट मेंटोर में और जेमिनी में, तो सब जगह आप यूज़ करो इसको, फिर आप देखो आपका कहाँ पे बेस्ट रिज़ल्ट आ रहा है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि सबका रिज़ल्ट आप मर्ज कर लो, फिर उसके बाद एक समरी बना के फिर आप खुद उसको यूज़ करो। So it is up to you. But generally 80-90% cases में like use cases में ChatGPT is okay and Perplexity is used for more research oriented work. तो कुछ अगर रिसर्च करना है कुछ करना है इसके अलावा आप ग्रोक भी यूज़ कर सकते हो फॉर सम केसेस। ग्रोक एक्स का मॉडल है, तो अगर आपके पास एक्स का सब्सक्रिप्शन है, तो आप ग्रोक में जाओगे। ग्रोक में यू कैन राइट एंड देन तो ग्रोक का क्या यूज़ होता है, ग्रोक के पास पूरा ट्विटर का डेटा होता है। तो यू कैन व्हेनेवर यू हैव समथिंग न्यूज़ रिलेटेड स्टफ ना, तो आप ग्रोक यूज़ कर सकते हो। इसके पास सारा लेटेस्ट डेटा होता है। बाकी जितने भी प मॉडल्स हैं, वो सब एक कट ऑफ डेट के बाद वेट करते हैं री रीट्रेनिंग का। तो बट हियर इन ग्रोक इट इज़ काइंड ऑफ इट वर्क्स ऑन सम ह्यूमन इन द लूप सिस्टम एंड वहाँ पे इसको RUHF करके एक लॉजिक होता है, उसके थ्रू ये कंप्लीटली अपने आप को अपडेट करता रहता है। तो यू कैन आल्सो यूज़ ग्रोक मॉडल इफ यू हैव सब्सक्रिप्शन, तो वो एक ऑप्शन होता है। ओके ठीक है। तो ये हमने एक यूज़ केस देखा अभी अ, इसके अलावा वी हैव मोर सच यूज़ केसेस लाइक हम लोग प्रॉम्प्ट के डिस्कस करता हूँ। लाइक एंड इनकम सेपरेशन, तो ये आप आरटीए के थ्रू मांग सकते हो अगर एम्प्लॉयमेंट की आपको डिटेल्स है तो कौन सी डिपार्टमेंट में। अगर स्कूल में है तो यू कैन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा आपको वहाँ पे मेन्यू ऑप्शन में, एंड देन इट विल गो टू द पर्टिकुलर स्कूल व्हेन व्हाटएवर स्कूल यू सेलेक्टेड। देन आरटीआई फॉर पुलिस एंड 498 प्रोसीजरल लैब्स, आप इसको ये चीज़ें मांग सकते हो कि क्या-क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की, केस डायरीज़ की इन्फॉर्मेशन, डेट्स में आप कहाँ-कहाँ गए, आए, वो सब चीज़ें आप इससे पूछ सकते हो। आप वही अगर अब ये चीज़ मैजिक प्रॉम्प्ट में डालोगे तो मैजिक प्रॉम्प्ट अपने आप बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट बना के देगा। वो प्रॉम्प्ट फिर आप है ना सारे मॉडल्स में यूज़ करो। परप्लेक्सिटी, जेमिनी ये चैट जीपीटी और सब जगह देखो आप आपको बेस्ट रिज़ल्ट कहाँ मिलता है। एक और चीज़ है, अगर आपके पास कोई बहुत बिग डॉक्यूमेंट्स है एंड यू नीड मोर रिसर्च काइंड ऑफ थिंग एंड यू हैव लाइक आपके पास 8-10 फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ है और उनका अगर आपको आउटपुट देखना है, बेस्ट आउटपुट देखना है, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर क्लाउड.एआई। क्लाउड.एआई थोड़ा-सा मतलब चार्जेबल है, कुछ फ्री है उसमें बट इतना नहीं है जितना जैसे चैट जीपीटी वगैरह फ्री देते हैं ना, उतना नहीं देता है। पर इन दोज़ काइंड ऑफ सिनेरियोज़ वेयर वी हैव 10-15 डॉक्स, बिग documents, Cloud AI would give you marvelous result in legal research. So I would सर, suggest go for Cloud AI also. So क्लाउड actually एआई that's why we need training ना कि हम लोग यूज़ हुँ, क्लाउड हाँ बोलिए एआई अंकित। मिल रहा है फ्री में परप्लेक्सिटी में ही, प्रीमियम। वो ठीक है अंकित, वो बात सही है। अपन बाद में बात करते हैं, लेट मी फिनिश फर्स्ट, ओके? श्योर श्योर श्योर, सॉरी। ठीक है, नो इश्यू। ठीक है, फॉर पुलिस हम बना सकते हैं। ऑथोरिटी स्पेसिफिक आरटीआई कस्टमाइजेशन, इसके
हैं किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर भी इसमें बंद हो सकते हैं। आरटीआई रिप्लाई फॉर बिलो मैट्रिमोनियल डिफेंस पर्सपेक्टिव, तो ये हम कर सकते हैं। मिसिंग रिकॉर्ड क्या है, तो ये बेसिकली ये एक आइडिया है, इसको आप यूज करके यू कैन यूटिलाइज दिस एंड क्रिएट मैजिक out with the points, validate those points with your legal friends, and then come up with your strategy. So these are the tools actually. So these tools, actually, because these will save your hours of work, hours of unnecessarily इधर उधर भाग रहे हैं टेंशन में। तो ये आप एक बहुत अच्छा समराइजेशन करके आपको दे देता है, और दिस इज वेरी गुड पैरट। तो ये कुछ भी चीजें याद करने में इंफॉर्मेशन गैदर क्लियर। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑफ फिल भी आप इससे ड्राफ्ट करवा सकते हो, एंड देन दीज आर सम मोर प्रॉम्प्ट्स व्हिच यू कैन यूज इफ यू वांट। ठीक है, एंड वेयर मैन शुड टारगेट आरटीआई टारगेट्स लाइक एम्प्लॉयर्स, जहाँ पे हम लोग को फ्रॉम मेंस perspective what are the information which we need to do, which departments we should our target is municipal bodies like residence। अगर मांग रहे हैं कि पीओ से आप मांग सकते हो डीबी एक्ट में कि यू विजिटेड व्हाट यू सीन हैव यू नॉट, सो दीज थिंग्स you can gather, okay? So you will have strong evidences that nothing has happened, and then this is all only verbal kind of things happening. So अगर आप भी verbally बोलेंगे और somebody else allegations are also verbally, then you will not be able to counter it properly. But if you count, be good actually. So that is where it is it is helpful, okay? So then these things are good, and द थिंग कि मुझे रोड से इंफॉर्मेशन, रोड सेफ्टी, रोड बना कितनी रोड बनी है, किसको कांटेक्ट दिया, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दो, तो इट won't be that appropriate. Instead of if you ask the question in a like as a citizen, I want to know about this because of this and that, then it would be more effective way of asking. So those things actually these tools can help you draft in a better way with the sections which help you to not get rejected actually. तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो देयर इज वन मोर प्लेस वेयर यू कैन गेट द सम आइडिया ऑफ द लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स। लेजिट मेंटोर में अगर आप जाएंगे तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये वाला सेक्शन है, इम्पोर्टेंट टेम्पलेट वाला सेक्शन है। इन दस इम्पोर्टेंट टेम्पलेट सेक्शन इफ यू गो टू आरटीआई टेम्पलेट्स, you will get so many documents here as well. So अगर आप RTA template देखते हैं इसमें, तो you can see so many templates are there where you can utilize these also, and then you can upload this also in the tool, and then based on your specific use case, it will merge the things and then get you the better result. Or you can even use this if you it is suitable directly for you, but I would suggest to merge and then use it with the proper wordings. So there are so many formats already available in here, so you can maybe see this later. Like EPF पे कैसे डाल सकते हैं, और टैक्स इवेजन की RTA कैसे डाल सकते हैं, वुमेन सेल के लिए, NCW के लिए, सब चीजें। All right, great. तो अभी ये हमने देखा। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम एआई जब भी हम ये ड्राफ्ट करते हैं ना, ड्राफ्टिंग में कई बार ऐसी चीज़ें छूट जाती है जो कि जनरली अगर हम सोचते हैं कि हमने ऐड कर दिया, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो अपन मिस कर जाते हैं वो सब चीज़ें। तो दैट्स अ गुड थिंग इफ यू टेक द हेल्प ऑफ एआई टू ड्राफ्ट इट एंड देन वेरीफाई इट आल्सो।
तो ड्राफ्टिंग के बाद okay, or you it is chances to get rejected. So you can also verify that once you get the summary, you can also extract information. You can summarize those documents and then get more summary out of it, and then if needed, you can take the informed decision. तो can RTI help cancel maintenance? डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आपको कोई ऐसा झूठ मिला है हुआ है जो कि आरटीआई से आप प्रूव कर पाते हैं, तो देन डेफिनेटली इट इज वेरी हेल्पफुल. Can RTA false resident? Yes, very effectively. AI risky code work only blindly trusted. So AI always says ki use it wisely. You cannot trust it blindly because this is not a human completely intelligence. अभी तक इतना आया नहीं इसमें, तो it need guidance. So this is very गुड क्वेश्चन. सो व्हाट हैपेंस इज आरटीआई गवर्नमेंट का जो साइट है ना, इसमें आपको पूरा एक साथ मिल जाता है सेंट्रल रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं. हाउएवर ईच स्टेट हैज देयर ओन साइट्स फॉर आरटीआई. Like Kerala, if you are going for some state level information, then you should try to see a state level site and then raise your RTA there. All right, so fight smart, not emotional, not expensive, and get the things done with the help of AI tool and drafting and everything else. So, okay, so I think now we are good from my side. I think this is the thing I wanted to share today. How RTI can be useful for false residence claim. So निशांत, false residence claim में क्या होता है ना कि जब भी ऐसा कोई claim आता है, तो आपको एक वो आता है कि आपको ये मांगना चाहिए कि आप मुझे एड्रेस दो या फिर आप मुझे रेंट एग्रीमेंट दो. तो जब आपके पास रेंट एग्रीमेंट आता है और वो फॉल्स है, तो आप उस जगह पे या तो आरटीआई से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो कि भाई उस जगह पे कोई रहता है नहीं रहता है. अगर आप डायरेक्ट जाके भी पता करते हो तो भी कर सकते हो, या फिर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके थ्रू भी आप आरटीआई लगा के निकलवा सकते हो वो इन्फॉर्मेशन. जैसे आप आई थिंक पुलिस में भी अगर आप दोगे तो कि यहाँ पे कोई रहता है क्या, इस तरह की आरटीआई लगाओगे तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट होपफुली दैट शुड बी हेल्पफुल. ओके. पुलिस तो कैसे बता पाएगी मतलब इस चीज के लिए कि वो वहाँ पे कोई रहता है नहीं रहता, मतलब वो जाके इंक्वायरी करेंगे उस चीज की या कैसे? आई थिंक वो या तो फिर क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं रहा ना, वो तो एक तरीके से वो एक तरीके से पर्सनल इंटरेस्ट हो गया मेरा. जैसे लेट से मुझे अगर किसी का लग रहा है कि फॉल्स क्लेम है, तो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आई थिंक पुलिस, हाउ पुलिस कैन हेल्प. तो एक्चुअली देखते हैं ये चीज, इसी से पूछते हैं. ठीक है. Act एक as पुलिस an वेरिफिकेशन के लिए जरूर अपन डाल सकते हैं कि इसमें जो एड्रेस रेंट एग्रीमेंट बना है वो उसका एड्रेस का कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है क्या, देखते वो हैं शायद अभी. अपन पूछ सकते होंगे. ठीक है. हाउ इन केस ऑफ फॉल्स residence claim, RTI can help me. Which department I should raise the RTI? ये क्वेश्चन अपन दूसरे मॉडल से पूछते हैं. What to call the maintain property tax, occupancy details, water bills. So म्यूनिसिपल से आप ले सकते हो, नगर पालिका लोकल बॉडी से. तो इसमें अगर कौन इसमें रह रहा है तो वो सब रेंट एग्रीमेंट के थ्रू पता चलता है. सही, कई बार क्या होता है कि बिजली के बिल से भी आपको पता चल जाता है कि अगर कोई क्लेम कर रहा है मैं वहाँ रह रहा हूँ, तो वहाँ का बिजली का मीटर भी देखो. कई बार लोग खाली रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, वहाँ रहते नहीं है. तो अगर बिजली का मीटर 0 दिखा रहा है, तो देन इट इज़ अ पॉइंट कि वहाँ कोई रह नहीं रहा है. तो दैट कुड बी वन ऑफ योर रिसॉर्ट टू गो फॉर, लाइक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, डिस्कॉम से आप पूछ सकते हो.
वाटर सप्लाई देख सकते हो। और इसमें देखता हूँ, इसमें भी अगर आरटीआई टेम्पलेट में होगा तो कुछ रेंट से रिलेटेड, आई थिंक समवेयर आई हैव सीन। इसमें नहीं है शायद, पर हाँ, तो वो जब भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना कुछ, तो आपको उसका रिस्पॉन्स ये आएगा कि हम इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो जब भी आपके पास ये रिस्पॉन्स आता है नहीं दे सकते हैं, तो देन यू कैन आइदर रीड्राफ्ट की किस रीजन की वजह से नहीं दे सकते हैं, या फिर आप उसकी फर्स्ट अपील में जा सकते हो। सो यू ऑलरेडी हैव फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील ऑप्शन अवेलेबल इन आरटीआईज। तो ओके। निशांत की क्वेश्चन के लिए कोई और है किसी के पास कोई और सॉल्यूशन, लाइक somebody want to pitch in for this, how to RTA can help for the false residence claims? Right. RTO had challenged the false application individual cases on obtaining an official public report that contradicts the complete various ownership rented flat RTI to municipal corporation for house owners detailed registration record. Yeah, you can this way you can say no, ownership record देख सकते हो, rental agreement ले सकते हो, तो these are the things actually. अगर रेंटल एग्रीमेंट है और वहाँ पे बिजली बिल जीरो आ रहा है तो दैट इज सेकंड पॉइंट। पुलिस कोर्ट रिकॉर्ड, सीक एफआईआर एंड एक्सचर कम्प्लीमेंट्री स्टेटस, रेसिडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नोट्स स्पेसिफिक इंसिडेंट एड्रेस। पुलिस रिकॉर्ड में निकाल के आप देख सकते हो कि जब आप विजिट करने गए तो वहाँ पे कौन से रिकॉर्ड थे। सो एक्चुअली नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली मेथड्स हैं, कुछ ना कुछ करके निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन। नोटरी से पूछ सकते हो ओके। कि किसके नाम से है ना। हाँ, एक्चुअली करेगा मुझे लगता है कोई सिचुएशन पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे ऑलरेडी कोई ओनर भी रह रहा हो उसी सेम हाँ। प्रेमिसेस में ना, तो हम्म। उस केस में थोड़ा सा ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी और ये सब काम नहीं आ पाएंगे। दूसरा जो आप म्युनिसिपल वाला बता रहे हो वो मुझे लगता है ठीक है, और उसमें भी क्या होता है ना, रेंट एग्रीमेंट केवल रेंट एग्रीमेंट नोटराइज होते हैं, रजिस्टर नहीं हम्म। करवाते। जब तक रजिस्टर हाँ, नहीं होंगे रजिस्टर तब तक कराते हैं। उसकी कोई एंट्री नहीं, फिर वैलिड एंट्री नहीं रहती कोई भी। हम्म। वो आई थिंक मुझे लग रहा है प्रॉब्लम रहेगी, फिर वो चीज निकालना मुश्किल रहेगा थोड़ा सा। हाँ। एनीवेज वी कैन ट्राई दीज ऑप्शंस, थैंक यू। देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसमें, पर डायरेक्टली तो कुछ हाँ नहीं जी। मिल रहा है वैसा, राइट। हाँ। हम्म, ऑल राइट। एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? ठीक है। ओके, अंकित, वो आप परप्लेक्सिटी का बोल रहे थे ना, तो परप्लेक्सिटी में यू आर राइट, उसमें सारे मॉडल्स हैं और ये अपने आप डिसीजन लेता है, दैट इज ऑल्सो राइट। पर ये इसका प्लस भी है, ये इसका माइनस भी है, तो इसके पास कोई और मॉडल नहीं है ना इसका, तो ये अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, या फिर हम स्पेसिफिकली इसको बता सकते हैं कि भाई ये वाला मॉडल यूज करो यहाँ से सेलेक्ट करके, है ना। ये भी अपन कर सकते हैं इसमें। तो और जैसे आप बोल रहे हो कि ये वाला है ना क्लाउड का, ये 4.5 मैक्स यूज कर रहा है। अभी मैंने एक क्लाउड कहाँ पे यूज किया था, एक्चुअली मैं बताता हूँ। मैंने इसको यूज किया है वो फाइल्स अपलोड करके, पर परप्लेक्सिटी ने ऑलमोस्ट वही रिप्लाई दिया जो चैट जीपीटी ने दिया था। फिर मैंने क्लाउड पे जाके स्पेसिफिकली वो चीज सर्च करी जो मैंने आपको बताया ना, 4-5 फाइल थी मेरे पास में। तो उसमें क्लाउड का रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसमें मतलब करीब 100 पॉइंट्स उसने बना के दिए मुझे, जो मतलब चैट जीपीटी ने। और वही 5-6 फाइल जब मेरे पास पीडीएफ में थी, तो चैट जीपीटी ने, परप्लेक्सिटी ने और जेमिनी ने, तीनों ने मुझे वही 10 से 15 पॉइंट्स बना के दिए। वही फाइल्स मैंने जब क्लाउड एआई पे डाला तो मुझे 90 पॉइंट्स मिले उसी फाइल्स में से। तो इमेजिन कि कहीं न कहीं तो ये चीज़ें कहीं पे है, चीज़ें मैटर कर रही हैं, डिफरेंस। सो या वी कैन डेफिनिटली वी शुड ट्राई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर आप करो ना, तो नेवर रिलाय कि हमारा एक ही मॉडल है, हमारा एक मॉडल से हमारा काम चल रहा है, सो वी आर गुड। ट्राई टू यूटिलाइज वेरियस मॉडल्स सो दैट यू विल गेट मोर रिजल्ट्स, यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज एंड सी
various results and take an informed decision. It's always better to utilize, multiple models. Okay, कोई और question? Anybody? Any suggestion? Any question? हाँ जी सर, मेरे को आप कुछ कह रहे थे क्या? मैं थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण सुन नहीं पाया। हाँ, मैं बस ये बोल रहा था, परप्लेक्सिटी आपने सही बोला कि उसमें सारे मॉडल्स हैं और फ्री भी हैं। जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो कौन सा मॉडल यूज़ करना है। तो परप्लेक्सिटी के पास खुद का कोई मॉडल नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो अपने ऑन द रन टाइम इट डिसाइड्स कि कौन सा मॉडल यूज़ करना है बेस्ड ऑन द यूज़ केस। मैं ये बोल रहा था, यस। मैंने एक यूज़ केस में यूज़ किया था, अभी थोड़ी देर पहले यूज़ किया था। मेरे पास 6-7 फाइल्स थी, पीडीएफ फाइल जो डीवी की थी पूरी, और सेशन अपील का एक वो बना रहे थे हम लोग आर्गुमेंट। तो उसमें मैंने क्या देखा कि वही सेम फाइल्स मैंने परप्लेक्सिटी में डाली, जेमिनी में डाली और इसमें डाली अपने चैट जीपीटी, लेजिट मेंटर सब में डाली। मुझे 15 से 20 पॉइंट सबने दिए निकाल के, ठीक है? फिर वही हुँ। क्लाउड एआई में डाले, वही फाइल्स मैंने और वही प्रॉम्प्ट, सेम प्रॉम्प्ट। क्लाउड एआई ने मुझे 90 पॉइंट बना के दिए। हुँ। तो समवेयर समवेयर समथिंग इज़ हैपनिंग। आई कैन शो यू दैट पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले बनाया ना। आई डोंट वांट टू शेयर द नेम्स एंड ऑल, बट दैट्स व्हाई आई कैन नॉट शेयर यू राइट नाउ, बट दैट्स हाउ इट वाज़ जस्ट नाउ आई हैव सीन। बट द थिंग इज़ आफ्टर 90 पॉइंट वो और भी काम करना चाह रहा था क्लाउड एआई, बट इट स्टॉप्ड बिकॉज़ माय डेली लिमिट वाज़ एग्ज़ॉस्टेड। सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वहाँ पे परप्लेक्सिटी में आपके पास ऑप्शन आता है, एक हुँ, तो हुँ। आस्क, रिसर्च एंड लैब। अगर हुँ, आप हुँ। रिसर्च पे क्लिक करते हो, तो वो पूरा हुँ, उस हुँ। प्रॉम्प्ट के ऊपर पूरी रिसर्च करता है, पूरी एक रिपोर्ट बना के देता है। अगर हाँ, आप बिल्कुल, लैब्स पे बिल्कुल। क्लिक करते हो, तो वो पूरा एक तरीके से प्रोजेक्ट बना के देता है। तो अगर हम जिस तरीके की भी आस्क उसको सेलेक्ट करते हैं ना, हुँ, रीजनिंग अगर हुँ। सेलेक्ट करते हैं, तो हर हुँ, मॉडल हुँ। अलग। मैं एक्चुअली डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हूँ और मैं अच्छा, अच्छा, एक्सटेंसिवली परफेक्ट। यूज़ करता हूँ। बहुत तो बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। इसके बारे वेरी में नाइस, थोड़ा-सा वेरी जानता नाइस। था। अच्छा, ग्रेट। हालाँकि और मैंने इसमें सर आपसे बहुत अच्छा अंकित, बताओ फिर आप यार, अच्छी बात है। नहीं, इसमें सर नाइस एक टू चीज हो लर्न। सकती है। हाँ। सर जैसा आपने बताया दिवाकर सर कि हुँ। जैसे आपने मल्टीपल ट्राई किए हुँ, मॉडल्स हुँ। हुँ, और हुँ। आपको क्लाउड एआई का बेस्ट रिजल्ट मिला, तो हाँ, मे इस बी केस ऐसा हो में बेस्ट सकता है कि रिज़ल्ट मिला। हुँ। परप्लेक्सिटी जैसे है कि वो ऑटोमेटिक डिसाइड करता है कि कौन सा मॉडल चूज करना है। तो हुँ, जो हुँ। आपने प्रॉम्प्ट दिया, हो सकता है कि उन्होंने वो क्लाउड एआई नहीं यूज करा हो, कुछ और यूज किया हो, इस वजह से वो बेटर रिजल्ट नहीं दे कुड बी। पाए हो। हाँ, कुड बी, हो है ना? सकता है। तो दैट माइट बी द रीजन। दैट कुड बी द रीज़न। पर वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अ, हर मतलब इसलिए हमको अलग-अलग यूज़ करना चाहिए। इट्स ऑलवेज़ बेटर टू यूज़ मल्टीपल, सेम प्रॉम्प्ट मल्टीपल जगह डाल के यूज़ करो। फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो भी एक बार वेरीफ़ाई करो। जैसे आप लीगल काम कर रहे हो तो बेयर एक्ट की एक फ़ाइल हमेशा रखो अपने पास में, या बेयर एक्ट का एक अलग से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फ्री में मिल जाता है। उससे आप जो भी ये सेक्शंस वगैरह बता रहा है ना, वो एक बार वेरीफ़ाई करो। जजमेंट्स के केस में आप इंडिया कानून फ़ाइल या फिर इस तरह की कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट की साइट्स हैं, उन सब से वेरीफ़ाई करो। आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू दैट लेवल कि वो सब चीज़ें ये खुद ही वेरीफ़ाई कर दे, जजमेंट्स वगैरह जो भी ये हैलुसिनेट नहीं करे, लेस हैलुसिनेट करे। सो दैट इज़ समथिंग आई एम ट्राइंग अंकित, सो दैट इज़ इसमें सर आप इनको ना कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। लेट्स सपोज़ आप बेयर एक्ट की पीडीएफ निकाल के हुँ, हुँ, हुँ। और उसको अपलोड करके प्रॉम्प्ट के साथ बोल दो कि बिल्कुल, बिल्कुल, मेक हाँ। श्योर यू रेफर द बेयर एक्ट पीडीएफ टू फ्रेम योर बिल्कुल, बिल्कुल। रिस्पॉन्स। हाँ, वही सब मैं लेजिट मेंटर में एक्चुअली मैं वही क्लाउड से अभी मतलब ये चैट जीपीटी का ही है, कस्टम जीपीटी, इसमें मैंने काफ़ी सारे रैग दिए हैं और भी इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक मॉडल भी बनाने की शुरू कर रहा हूँ, धीरे-धीरे उस पे भी जा रहे हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पर तब तक के लिए ये शॉर्ट टर्म, जब तक चैट जीपीटी भी फ्री है, सो व्हाई नॉट यूज़ इट? सो इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, प्लस इसके जो टूल्स हैं ना, इसमें टूल्स में दैट एपीआई कैन आल्सो बी इंटीग्रेटेड इफ कस्टम जीपीटीज़ एंड ऑल। तो वो मैं यस। सोच रहा हूँ कि जो फ्री एपीआई टियर्स है ना सुप्रीम कोर्ट की, ये सब में से रिसर्च कर रहा हूँ कि किससे वो करके कि इसी से सारा कुछ आ जाए और ये लेस हेलुसिनेटेड वाले रिजल्ट्स जो हैं। और व्हाई इट इज बिकॉज इट इज हैज बीन ट्रेन्ड फॉर फाइटिंग द फेक केसेस बेसिकली। सो दैट्स द मेन कॉन्टेक्स्ट आई एम इम्बाइबिंग इन दिस टूल। जी। सर आपको ये जो क्लॉड में ये हम्म। लिमिट वाली इश्यू आ रहा था कि भाई हाँ, मेरे हाँ। को 90 हाँ, रिस्पॉन्स हाँ, के बाद बिल्कुल वो मैं रुक गया। बताता हूँ। मेरा रुक गया वो ये 90 आपका ये आपका डेज। परप्लेक्सिटी में नहीं आएगा आपको ये इश्यू। आप क्लॉड अगर मॉडल सेलेक्ट कर देते हो तो। ओके, ओके। पर वो उतनी डिटेल में दे पाएगा क्या? जैसे मैंने ये वाला कौन-सा मॉडल ये वाला यूज़ किया था, ओपस 4.5 अपग्रेड है ना, ये यूज़ किया था। लेट मी चेक इफ क इसमें है भी क्या वो? सेम ही है, बैकएंड पे वो उसी की एपीआई हिट करके कॉल करता है वो।
आपको ये वैसे ही ये रिस्पॉन्स रहा देगा। मैक्स वाला है, हाँ तो ये सेलेक्ट करके मैं कर, अच्छा इस पे तो पैसे मांग रहे हैं क्या इसमें? मैक्स के लिए मांगेगा, मैक्स के अलावा नहीं मांगेगा। वो एयरटेल के थ्रू अगर आपने रिडीम किया है तो हाँ नहीं मैंने मांगेगा। इसी से किया था वो, ये मैक्स नहीं है क्या? ओपस 4.5 पता नहीं, ये ओपस तो इसमें है नहीं शायद ना। एनीवे मतलब है कुछ, आई डोंट नो, ये सोनेट का मॉडल शायद एडवांस होगा, आई डोंट नो, बट इट वाज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट। आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई वाज वेरी हैप्पी आल्सो। सो आई जस्ट और वांटेड टू अभी शेयर। या रिसेंटली जेमिनाई 3 प्रो आया है गूगल का, हाँ हाँ उसने सबको पीछे छोड़ा है, वो हाँ सबसे बेस्ट एग्जैक्टली, वो कर बिल्कुल रहा है बिल्कुल। फिलहाल। जेमिनी अच्छा है, फ्री भी मतलब कंपैरेटिवली काफी कम उसके चार्जेस हैं। जेमिनाई तो जियो के साथ फ्री मिल रहा है, अगर किसी को नहीं अच्छा पता है अच्छा, तो। वेरी नाइस, गुड इन्फॉर्मेशन, यस। यस सर, उसके 5G जेमिनी रिचार्ज के साथ। जेमिनी अंकित, जेमिनी वैसे तो फ्री रहता है ना, जैसे तो अगर इनिशियली तो अगर। हाँ सर, वो बेसिक मॉडल फ्री रहता है, थोड़ा जो एडवांस और लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो पेड होते हैं, बट अभी अपना जियो के साथ मिल रहा है तो लोग कर सकते हैं ओके उसको ओके हाँ, अभी। यस उसमें स्टोरेज भी जेमिनी। फ्री मिल रहा है। 2 टेराबाइट स्टोरेज भी फ्री है शायद जियो के साथ 18 मंथ्स के लिए। हाँ जी। अच्छा अच्छा, हम्म, ग्रेट नाइस। तो अंकित आप कहाँ से हो वैसे? सर मैं बहादुरगढ़ से हूँ, दिल्ली एनसीआर से ही। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। तो मेरी आपसे एक बार डिटेल में बात हुई थी, आपको ध्यान नहीं होगा, थोड़ा टाइम हो गया। आप अगर अच्छा व्हाट्सएप चैट से गो थ्रू करेंगे तो आपको शायद याद आए। जरूर जरूर अ, अंकित, यू कैन और कॉल मी दिवाकर ऑल्सो, मतलब कॉर्पोरेट में काम करते हैं नहीं हम सर, लोग, मैं इसको आपसे करके बहुत आदत छोटा नहीं हूँ। है। नहीं, मैं आपसे नहीं बहुत छोटा हूँ मैं। नहीं, डजंट तो मैटर यार, कोई कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब मैं लास्ट कॉल तो नहीं ज्वाइन कर पाया था। मैं बस एक चीज नोटिस की कि आपने सारा ऑनलाइन का सिस्टम बताया, बट हम्म। आपने ऑफलाइन का भी बता चुके हैं कि आप कवर कर चुके हैं। ऑफलाइन आरटीआई का? जी। नहीं नहीं, ऑफलाइन आरटीआई के मैंने नहीं कवर किया अभी तक तो। आप आने मे बी वाले सेशन में कवर करने वाले हैं? some other session will take just maybe, या अभी तो अच्छा। डिसाइडेड नहीं। मेरा फोकस क्यों? एक्चुअली टेक से रिलेटेड ही है ज्यादातर, एक्चुअली मोर रिलेटेड टू हाउ यू कैन यूज द एआई एंड द प्लेटफॉर्म्स, सर ऑनलाइन इशू प्लेटफॉर्म। ये आया था क्योंकि मेरे को राजस्थान में आरटीआई डालनी थी और वहां पे ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं था, तो मजबूरन मेरे को ऑफलाइन रूट लेना पड़ा। तो आरटीआई राजस्थान पोर्टल नहीं है क्या? है आरटीआई यार। है पोर्टल राजस्थान, वहां नहीं पे एक राजस्थान में एप्लीकेशन। सिंगल साइन एक्चुअल में सर, दिवाकर सर वो है ना अपना जो सिंगल साइन ऑन वाली एप्लीकेशन है। हाँ हाँ, अच्छा अ, उसके थ्रू क्या, हाँ हाँ समझ गया। उसके थ्रू होगा तो मे सीसीटीएनएस। बी आई थिंक वो नॉन रेजिडेंट के लिए शायद नहीं हो, कुछ ना कुछ अल्लाह ऐसा रीजन हो सकता है मे बी। ये भी चलेगा और हाँ, उसमें मैंने लेकिन काफी कोशिश की थी, तो उसके मुझे ऑफलाइन करना पड़ा था। तो अगर कोई कुछ ऐसी ऑफलाइन स्टेट्स में जहाँ पे अभी तक ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम में नहीं गया है। देखो ड्राफ्टिंग तो सेम रहती है ऑफलाइन में भी, मतलब ऐसे ऑफलाइन में बस आपको पोस्टल ऑर्डर खरीदना पड़ेगा 10 रुपए का, और वो आपको उसके जी। साथ में डालना पड़ता है, और बाकी तो सब चीजें वही रहती है, पर उसमें क्या रहता है, ट्रैकिंग व्रैकिंग में आपको मैनुअली सब करना पड़ता है कि भाई डिलीवरी हो गया, मतलब स्पीड पोस्ट से, फिर उसके बाद फिर आप उसको संज्ञान लो जो भी करोगे, भाई ये 30 दिन हुए नहीं हुए, तो मतलब मैनुअल करना पड़ता है, तो थोड़ा सा उसमें रहता है, पर जहाँ पे नहीं है वहां तो करना ही पड़ता है, right? हाँ जी। Yes, yes, Komal, will be actually. This webinar is my purpose is quite different. Actually, I'm planning to do it जब तक मैं कर पाऊंगा. Every Sunday 8 to 9 we'll discuss it. It is not like a proper वैसा नहीं है कि मतलब हम लोग कुछ मतलब इट्स अ लर्निंग एक्चुअली, जैसे अंकित मिले मुझे, सो एआई इज इवॉल्विंग एक्चुअली, सो वी इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन अ वन कम्युनिकेटिव मोड एंड learn from each other and grow and share your doubts, or if you want help from each other, that is also we'll try to get into. सो दैट्स द पर्पस ऑफ these सेशंस एक्चुअली। सो अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, अगर कोई जैसे निशान ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो दैट इज स्टक इन माय माइंड, समटाइम्स इफ आई गेट समथिंग आई वुड डेफिनेटली, लेकिन लेकिन अगर कोई और अपने ग्रुप में रहता जिसको ये एग्जैक्ट पता होता, जिसने ये यूज किया होता, तो ही वुड बी एबल टू हेल्प इट। सो दिस सेशन इज एक्चुअली काइंड ऑफ सपोर्टिव सेशन गोइंग फर्दर। आई वांट टू कंटिन्यू इट as far as I can do, because that is how it would help others as well to learn and then grow. Many things are available. मैंने देखा लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन पोर्टल भी होता है आरटीआई लगाने के लिए, लोग परेशान होते रहते हैं।
तो एक्चुअली मैंने खुद फेस किया, मुझे नहीं पता था। 99% चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैंने खुद सीखी या किसी से सीखी। तो मुझे लगा व्हाई नॉट शेयर इट, इफ आई हैव लर्न्ड इट हार्ड वे, लेट्स शेयर इट सो दैट अदर्स कैन गेट बेनिफिटेड। तो दैट इज़ द पर्पस एक्चुअली। सर मैं तो आपको मतलब थैंक यू कहना चाहूँगा, जो आप ये इनिशिएटिव ले रहे हो। लोगों अरे को यार, बहुत सबका चीज़ें पता होती हैं फिर भी एवरीबॉडी, सबका है ये, दिस इज़ फॉर एवरीबॉडी एंड वी ऑल बी पार्ट ऑफ दिस, सो डोंट यस मेक इट ये शाइनी। So it is a नहीं नहीं, ये community. आपने It बहुत would अच्छा be इनिशिएटिव लिया है। always a community platform and it would be available and it would grow actually. So अभी इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें अपन ऐड करेंगे। जैसे आप लोगों को सजेशन, आप लोग का कि जस्ट कीप गिविंग मी सजेशन, whenever I have time I would keep updating it and अब जैसे डेटा साइंस से हो अंकित, तो आप मुझे थोड़ा और बताना कि क्या हाँ इसमें जी। और कर सकते हैं। अभी तो बहुत बेसिक लेवल पे है ये, बट वी डेफिनेटली मेक इट मोर वर्कफुल। सो इट्स जी। इंटरेस्टिंग फील्ड। हम लोग अकेले नहीं है जो लीगल टेक में कर रहे हैं, और इंडिया में क्यों जरूरी है, यू ऑल नोज कि 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो सिटीजन ग्रास रूट लेवल पर अगर हम लोग कुछ करते हैं तो ये डेफिनेटली ये ग्रो होगी, चीजें बढ़ेगी चीजें। एंड पीपल लाइक अस कैन सजेस्ट कि अगर एआई की कोई मीटिंग होती है तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि पीएमओ वगैरह कर ही रहे होंगे कि कुछ लीगल को कैसे मोर ऑटोमेट किया जाए, because we have so many good tools right now, if uses correctly that can reform our legal sector completely। इतने लोग परेशान हो रहे हैं लीगल की वजह से, वो सब चीजें बहुत कम हो जाएगी, राइट। एक पूरा वर्कफ्लो अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब पूरा लीगल उस मिनिस्ट्री लेवल पे, तो इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर एवरीवन। जी, कई बार हमें जजमेंट्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें सिर्फ हाँ, कंटेक्स्ट पता होता है पर ढूंढ नहीं पाते, तो वो इनको वो बोल यार देते वो हैं मैंने ढूंढ। भी देखा है अंकित, वो एक्चुअली वो बहुत सारी साइट्स है पर वो उसके बाद भी नहीं देते यार वो लोग प्रॉपर जजमेंट, वो पता नहीं क्या चीज़ है वो। आई एम आल्सो ट्राइंग टू गेट इनटू दैट, एपीआईज़ के थ्रू करेंगे उसका कुछ ट्राई। यस पुष्प, टेल मी, आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पास्ट सेशन, हाउ कैन वी काउंटर plagiarism issue which generally is seen as we do research through AI? ये सब चीज़ें वी काउंटर्ड, हाँ, ठीक है, व्हिच इज़ जनरली सीन व्हेन वी गो रिसर्च थ्रू इट। तो दीज़ थिंग्स वी कैन रिसर्च, एक्चुअली रिसर्च कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, पर मेनली जो भी चीज़ें हैं ना, इस तरह की चीज़ें जो है वो अ, इसका जो एविडेंस कलेक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अदरवाइज़ इट वोंट बी एक्सेप्टेबल एज़ वेल। इफ यू कलेक्ट आल्सो बाय सम अदर मीन्स व्हिच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ नॉट अ राइट वे। तो उसका देख सकते हैं, मे बी we'll see some other session how to collect evidence and how to get it in a useful mode. With some other session we'll discuss completely, because it's a very good topic and it need more research from my side as well. Yeah. All right, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, बट चिट चैट कर सकते एज यू ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, बिकॉज अभी इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट प्रोफाइल में हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब काम वगैरह का रहता है प्राइवेट सेक्टर में, so that is how it is little slow as I wanted, but if you all comes like we all work together, definitely it will be nothing like that. It can make wonders if you all contribute and we all can support this cause. जी। Yeah. All right, great, nice meeting all of you. We'll meet again next Sunday. Bye then, bye, thanks, take care. Yeah, great initiative, sir. Thank you very much for the session. Thank you. थैंक Thanks, यू सर। thanks, bye. Thank you. Bye. Thank you, sir.